ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ PSSB ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 2023 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 2022 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 21 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵੀਕਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ। ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਟ A ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 79-80 ਮਾਰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ 100, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS, ਹਰਿਆਣਾ PCS, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ डिटेल सोल्यूशन पे है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ 3 20 63 144 275, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਹੈਗਾ 3 ਗੁਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। 20 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 20 ਹੈਗਾ 5 ਗੁਣਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 63 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 63 ਹੈਗਾ 7 ਗੁਣਾ 9। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੈਲੋ ਕੋਡਸ ਹੈ 3 5 7 ਇਹ ਹੈਗੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਰੈਡ ਕੋਡਸ ਹੈ 1 4 9 ਇਹ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 144 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 7 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ 9 ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ 16। ਫਿਰ 275 ਔਡ ਟਰਮਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਰਮ 11, ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਰਮ 25। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਗਾ ਔਡ ਟਰਮ ਦਾ 13 ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 36। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 468 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, choose the pair of words from which the given option that will fill the blanks so that the sentence become true and meaningful. Dash is to cork as box is to. cork ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ cork ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ cork is the cover of the bottle, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੋਟਲ is to cork as box is to lid, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਔਡ ਨਿਊਮਰਲ ਪੇਅਰ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, 140 ਨਾਲ 45, 110 ਨਾਲ 35, 100 ਨਾਲ 30, 80 ਨਾਲ 25। ਤਾਂ 45 ਗੁਣਾ 3 ਹੁੰਦਾ 135, ਉਸ 'ਚ 5 ਜੋੜੋ 140। 35 ਗੁਣਾ 3 ਹੁੰਦਾ 105, ਉਸ 'ਚ 5 ਜੋੜੋ 110। 30 ਗੁਣਾ 3 ਹੁੰਦਾ 90, 5 ਜੋੜੋ 95। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 95 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ 3 75 ਪਲੱਸ 5 80, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਬਾਈ 3 ਐਂਡ ਐਡ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ E5 ਪੈਨ 35 ਤਾਂ ਪੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ E ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ PEN ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 5 ਤੇ 14, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੇਜ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 16 1 7 5, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 29। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਸੇਜ਼ ਰਵੀਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਫਾਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅਨਿਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਵੀ? ਤਾਂ ਰਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਹੋਊਗਾ ਅੰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਾ। ਰਾਜੂ ਡਰਾਈਵਸ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ, ਟਰਨਸ ਲੈਫਟ, ਟਰੈਵਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਰੀਚਿਸ ਪੁਆਇੰਟ O. then he turns right and covers another 5 kilometer. afterward he turns to east and drives 5 kilometer. how much distance in kilometer he has to travel back to go to the starting point? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ O ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਮੁੜਿਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੇ 5 ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੇ 25। ਇਨ ਵਿਚ 2 ਮੰਥਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਫॉर ਫਸਟ 30 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਤੇ ਮੰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ 28 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ 29 ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਫਸਟ 30 ਡੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜੂਨ 'ਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 31, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਜੂਨ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1 ਜੂਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਜੋ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जून तो अक्टूबर 122 नहीं जाएगा 7 पे, ठीक है। अप्रैल तो नवंबर 214 ये भी नहीं जाएगा। अप्रैल तो जुलाई 91, 13 गुना 7 91, तो
अक्टूबर ते दिसंबर सिर्फ 61 ऑड डेज, तो ये भी नहीं जाएगा 7 डे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 अप्रैल इज सेम डे एज 1 जुलाई एवरी ईयर, तो पहले 3 दिन का कैलेंडर क्या होगा, सेम हो जाऊगा। पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ऑप्शन देख के चेक करना होंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो तुम पाओगे तो तुम्हें 26 आंसर मिलूगा, सेकंड ऑप्शन पाओगे 115 जो कि मैच हो रहा है, बाकी तो ऑप्शन भी देख लेने हैं। थर्ड ऑप्शन वाला 54 मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन वाला 40 मिल रहा है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स लाना आना चाहिए सारे, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन सीखे दोनों। तो पहले वर्टिकल है, दूजे अद्धा हॉरिजॉन्टल ऐड होया, फिर एक वर्टिकल ऐड हो गया, फिर अद्धा हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल। तो नैक्सट की होएगा, ऊपर जान गए तो अद्धा ऐड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डी ते ए कंफ्यूजन है क्योंकि डी च डेढ़ ऐड हो रहा है, तो अद्धा ही ऐड करना। इस की है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कर रहा है, तो उस साउथ पॉइंट कर रहा है, यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तक फेस करूंगा साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ए भी ईजी है, ए का मिरर इमेज है, बी का मिरर इमेज है, सी का भी मिरर इमेज है, डी का नहीं है। ठीक है, 65B माइनस 33C 97 है, तो 33B माइनस 65C 1 है। 9th क्लास की एनसीईआरटी च काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिससे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं आप, तो इस करना कुछ नहीं है, वी नीड टू फाइंड बोथ बी एंड सी, उस तो अलावा इक्वेशन नहीं हो सकता, तो अपन कढ़ना आना चाहिए। दोनों इक्वेशन आप ऐड या सबट्रैक्ट कुछ भी कर लाँगे, तो ऐड कर दें। तो 98B माइनस 98C 98 के इक्वल आ जाऊ, यानी कि B माइनस सी आ जाऊगा 1 के इक्वल, यानी कि B की वैल्यू आ जाऊगी C+1। हुण इस वैल्यू में किसी भी इक्वेशन च पुट कर दो, तो आप इतने पुट कर दें, आंसर आ जाऊगा 65B प्लस 65 माइनस 33C इक्वल टू 97, यानी कि 32C इक्वल टू 32, यानी कि C की वैल्यू 1, B इक्वल टू C+1 सी, तो B की वैल्यू 2, BC की वैल्यू 2। द नंबर 2 पर 48 माइनस 1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70, द नंबर्स आर। ये क्वेश्चन जो पहला किया हुआ तो काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा जहा टफ पै सकता है। 2 की पर 48 माइनस 1 है, जो सीधा ऑप्शन तो करना है, तो मैं ट्रिक दस देना थोनू। देख लो 2 की केड़ी पावर 60 से 70 के विच आती है, तो 2 की पावर 6 होंगे 64, ठीक है, उस एक जोड़ दो तो एक घटा दो, वही तो आंसर होएगा। ठीक है, तो 63 ते 65 विदाउट एनी पेपर या पेन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जे ट्रिक पता हो, अदरवाइज ये करना किमें है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा रिपीटेडली जो तक तुम मिनिमम वैल्यू तो नहीं पहुंच जाते, यानी कि 2 की पावर 48 माइनस 1 द स्क्वायर, उन्होंने 1 द स्क्वायर या 1 की पावर 48 जो मर्जी लिख लो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म, यानी कि 2 की पावर 24 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 24 प्लस 1, पहला स्टेप। ठीक है, हूँ 2 की पावर 24 माइनस 1 अपने काम का है, 2 की पावर 24 प्लस 1 अपने काम का नहीं है, क्योंकि वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होएगा। ब्लू टर्म आप आगे लेने हैं, यदि वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 12 का स्क्वायर होंगे 2 की पावर 24, तो 2 की पावर 12 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 12 प्लस 1, येलो टर्म अपने काम का है, व्हाइट टर्म अगे फैक्टराइज नहीं होएगा। 2 की पावर 12 माइनस 1 होगा 2 की पावर 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 पावर 6 माइनस 1 इंटू 2 पावर 6 प्लस 1। हूँ 2 की पावर 6 में तुमने हुणे दस्या सी 64 होंगे, आंसर क्या हो गया 63 इंटू 65। ठीक है, तो यही रीजन है जो तुम डायरेक्ट करना चाह रहे हो क्वेश्चन तो विदाउट पेपर पेन हो जाएगा। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। इस कुछ बच्चों को कॉन्सैप्ट का क्लैरिटी नहीं होंगी, तो जे आप सिंपल वैल्यूज लैके देखिए, ठीक है, HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन है ये, जे आप सिंपल वैल्यूज लईए कि रूम साइज है 15 मीटर बाय 12 मीटर। ठीक है, सब तो पहले आप कटांगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आ जाऊगा 3, तो 15/3 12/3। ठीक है, 15/3 यानी कि 5 टाइलां लेंथ के अलॉन्ग लगनगियां, 12/3 4 टाइलां विड्थ के अलॉन्ग लगनगियां, तो 5 गुना 4 आंसर की बचा 20, यानी कि HCF नाल डिवाइड कर दो उन्होंने दोनों नंबर्स नूं, जेड़ा प्रोडक्ट बचे वो अपना आंसर हो जाऊगा। ठीक है, तो नंबर्स आर 1517 सेंटीमीटर से आप कन्वर्ट कर ले, तो 902। हुण इन्हां दी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा टाइम लगेगा, 37 गुना 41 आंदा है, तो एक आंदा है 2 गुना 11 गुना 41। कलर कॉम्बीनेशन देख के तुम समझ रहे होंगे 41 जिहड़ा है इन्हां दा HCF है। ठीक है, हुण इस तो बाद आप कह सकते हैं कि 1517 नूं 41 से डिवाइड करिए, यानी कि 37 टाइलां जिहड़ियां हैगियां वो लेंथ के अलॉन्ग लगणगियां, तो 902 नूं 41 से डिवाइड करिए, यानी कि 22 टाइलां जिहड़ियां हैगियां वो विड्थ के अलॉन्ग लगणगियां, यानी कि ब्लू कलर जो नंबर मैंशन है उन्होंने प्रोडक्ट हो जाएगा अपना क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 2 × 11 × 37। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 4 आऊगा, एक ही ऑप्शन है 4 यूनिट डिजिट वाला, तो वही आंसर है। ठीक है, यह है अपने एग्जाम का पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ बच्चों तो हो सकता ना होया हो। कार ओनर बाइज पेट्रोल एट 17, 19 ते 20 रुपए पर लीटर फॉर 3 कंजैक्टिव ईयर्स, 3 साल लगातार उन्हें अलग अलग प्राइस से पेट्रोल खरीदा। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर इफ ही स्पेंड्स 6460 रुपए हर एक साल वो खर्चता है पेट्रोल से। पहले साल उन्हें कितना पेट्रोल खरीदा होना है
6460 बटे 17, दूजे साल 6460 बटे 19, तीजे साल 6460 बटे 20। ठीक है, हुण ये कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट कढनी है, तो पहला एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला समझना पएगा। पहले साल 6460 रुपए लाए, दूजे साल भी 6460 लाए, तीजे साल भी 6460 लाए, तिना का सम करांगे आपां न्यूमरेटर च। डिवाइड बाय मैं हुणे तुहानूं तिन्ने क्वांटिटीज़ दस्सियां, तिन्ना क्वांटिटीज़ नूं ऐड करांगे। ठीक है, तो की हो जाऊगा 6460 प्लस 6460 प्लस 6460 डिवाइड बाय पहले साल का पेट्रोल, दूजे साल का पेट्रोल, तीजे साल का पेट्रोल प्लस करके 6460 कॉमन तो कैंसिल हो जाऊगा 6460 इमीजिएटली। क्वेश्चन का आंसर हो जाऊगा एलसीएम लैन तो बाद 3 गुना 17 गुना 19 गुना 20, थले आऊगा 2 का कॉम्बीनेशन 17 गुना 19, 17 गुना 20, 19 गुना 20। तो आंसर आ जाएगा ये है 60 × 323 अपॉन 323 प्लस 340 प्लस 380। तो आंसर आ जाऊ 19380 बाय 1043। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 18.51 इज द आंसर। ओके, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। 4 years later their ratio will be 9:7. If at the time of their marriage the ratio of ages was 5:3, then how many years ago they were married? The काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड का क्वेश्चन है। जी प्रेजेंट एज है वो 4x 3x मान सकते हैं या 4k 3k। 4 साल बाद 4k + 4 रेशो 3k + 4 9:7 आ जाऊगा। इतों k की वैल्यू आ जाऊगी डायरेक्टली अपने को = 8, यानी कि अज उन्होंने उम्र हैगी है 32 ते 24 साल। ठीक है, कुछ साल पहले उन्होंने शादी हुई सी, उस टाइम पे उन्होंने रेशो ऑफ एजेस सी 5:3। तो लेटर से m साल पहला विआह होया सीगा, प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं। m साल पहला विआह होया मतलब 32 - m ते 24 - m का रेशो है 5:3। तो इन्हों सॉल्व करांगे, आंसर आ जाऊगा 12। ठीक है, यानी कि 12 साल पहला वो सीगा 20 साल का, वो सीगी 12 साल की। 20:12 = 5:3। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 6.14% इन द प्राइस ऑफ शुगर a man is able to buy 1 kg more for rupees 120. Find the original and reduced rate of sugar. ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6/1/4 ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 25/4 × 1/100 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4 × 1/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/16। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 16k ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ 1/16 ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/16 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/16k ਦਾ k। ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ 15k। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है 120 रुपए की। तो 120 रुपए की पहला कितनी खरीद पाता सी 120/16k, हुण कितनी खरीद पाता है 120/15k। तो 120/15k माइनस 120/16k = 1 के राइट हैंड साइड लै जाएंगे। 120/15 माइनस 120/16 आ जाऊगी के दी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 8 - 7.5 दैट इज अद्धा। अद्धी वैल्यू है तो ओरिजिनल प्राइस पूछी सी, के दी वैल्यू पुट कर दो 16 गुना अद्धा 15 गुना अद्धा 8 रुपए 7.5 रुपए। In a shop, 80% of the articles are sold at 10% profit, remaining at a loss of 40%. What is the overall profit loss? इस टाइप के क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ एज्यूम करना ਹੁੰਦਾ है कि 100 आर्टिकल है तो एक आर्टिकल की प्राइस जी कॉस्ट प्राइस है वो 100। ठीक है, 80% आर्टिकल्स यानी कि 80 आर्टिकल 110 रुपए के बेचते उन्हें। ठीक है, तो वही SP हो जाएगी 8800। बाकी के 20 आर्टिकल जो ने वो किन्ने रुपए के बेचे 60 रुपए के, तो उन्होंने SP कितनी हो जाएगी 1200। 8800 ते 1200 10,000, CP भी 10,000 SP भी 10,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, यह सैकेंड क्वेश्चन है जो मुश्किल सी। 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड 1,25,000 ते 85,000 रिस्पैक्टिवली इन अ बिजनेस। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। इफ वन पार्टनर रिसीव्ड 10,000 मोर देन द अदर देन द टोटल प्रॉफिट इज। हुण इस 1,25,000 ते 85,000 की रेशो पहला आप कड्ढीए। ठीक है, 25:17 5 ते कैंसिल हो जाऊगा। ठीक है, नाउ 60% प्रॉफिट वो बराबर बराबर बनते हैं तो 40% प्रॉफिट 25:17 बनते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार पूछा गया। ठीक है, तो इस बहुत ही ध्यान आप मनांगे जे आप 40% प्रॉफिट की वैल्यू 25 + 17 यानी कि 42k मान लीए। ठीक है, तो 40% प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है 42k है, तो अपन बाद इस यूनिटरी मैथड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 42k है, डिफरेंस उन्होंने दसिया हुआ 3,000 रुपये है क्योंकि 60% तो इक्वल बनते हैं। तो 40% का ही जो अगे डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एक नूं 25k मिलू, एक नूं 17k, डिफरेंस होगा 8k। तो 8k की वैल्यू 3,000 है, तो k की वैल्यू 375 आ जाएगी। ठीक है, 750/2। हुण आपां की करना है 40% प्रॉफिट नूं आपां 42k मन्निया सी, आपां नूं टोटल प्रॉफिट पूछना है यानी कि 100% प्रॉफिट कितना सी। तो यूनिटरी मैथड लावांगे। 40% प्रॉफिट 42k है, तो इनू 40 नाल डिवाइड कर दो, 100 नाल गुना कर दो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 2.5 का। तो 100% प्रॉफिट हो जाएगा 2.5 × 42k दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाऊगा 39,375। ठीक है, ऑप्शन बी।
What is the difference between compound interest on 5,000 for 1 year at 4% per annum compounded yearly and half yearly? भाई जे ईयरली कंपाउंड करांगे तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगूगा, कितना हो जाऊगा 5,000 इंटू 4 इंटू 1/100 यानी कि 200 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ईयर से जे आप कटांगे तो 1/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 100 रुपए। हाफ ईयरली फिर नैक्सट प्रिंसीपल कितना हो जाऊ 5500, तो नैक्सट अपन CI फॉर सेकंड हाफ ईयर कितना मिलूगा यानी कि 51 गुना 2 102 रुपए। इधर 200 मिला, इधर 202 मिला, डिफरेंस कितना हो 2 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन 46, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. 2m plus 3b into 10 is equal to 3m plus 2b into 8 पहली इक्वेशन। ठीक है, इन्हें सॉल्व करांगे अपने को आ जाऊगा 20m plus 30b इक्वल 24m plus 16b, तो 4m की वैल्यू आ जाऊगा अपने को 14b के इक्वल, यानी कि 2m की वैल्यू 7b। 2 मैन का जो काम है वो 7 बॉयज के काम के इक्वल है। इन हाउ मेनी डेज कैन 2 मैन एंड 1 बॉय डू द वर्क? तो टोटल वर्क की आप वैल्यू कढ़ीए तो टोटल वर्क की वैल्यू होगी 10 इंटू पहला सीगा 2 मैन उसकी जगह 7 बॉयज आ गया, 7 बॉयज प्लस 3 बॉयज यानी कि 100 बॉयज डेज वर्क अपने को टोटल है। हूँ किन्ने मैन है 2 मैन यानी कि 7 बॉयज प्लस 1 बॉय 8 बॉय, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 100/8, राइट। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन, हैड द ट्रेन मूव्ड 4 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस, इफ इट मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेक 20 मिनट्स मोर, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, डिफिकल्ट कैटेगरी का थर्ड क्वेश्चन है। इस चप्पा ट्रिक लगानी पड़ेगी, दो इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करके काम नहीं चलता। ठीक है, तो सब तो पहला डिस्टेंस में आप मनांगे d, स्पीड में आप मनांगे v। ठीक है, सब तो पहली इक्वेशन बनेगी d/v माइनस d/v प्लस 4, यानी कि वो 4 किलोमीटर तेज चल रहा होंगे 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 30 मिनट्स इन आवर्स इज 1/2, तो d/v माइनस d/v प्लस 4 इक्वल टू हाफ। दूजी इक्वेशन बनेगी जे वो स्लो चल रहा होंगे यानी कि d/v माइनस 2 माइनस d/v इक्वल टू 1/3। ठीक है, अलग अलग कलर्स आप सॉल्व करांगे इनू। ऊपर च d कॉमन आ जाऊगा दोनों इक्वेशन चो, तो ऊपर बनूगा 4d/v इंटू v प्लस 4 इक्वल टू 1/2, इतने बनूगा 2d/v इंटू v माइनस 2 इक्वल टू 1/3। d की वैल्यू कढ़ लो दोनों पासों, v इंटू v प्लस 4/8, d की वैल्यू v इंटू v माइनस 2/6, तो इन्होंने दोनों वैल्यूज में इक्वल रख दो या डिवाइड कर दो, एक ही गल है। ठीक है, तो अपने को आंसर आ जाऊगा v की वैल्यू आ जाऊगी 20 किलोमीटर पर आवर। हूँ इन्हों कितने भी पुट कर दो पहले च दूजे च, तो 20 गुना 24/8 यानी कि 20 गुना 30 आंसर आ जाऊगा 60 किलोमीटर। ओके, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी सी, हो सकता है स्टेटमेंट देखे कुछ लोगों ने छाड़ता हो, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ ग्रेप पाइनएप्पल बनाना जूसेस इन द गिवन रेशो, 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। हुण सब तो वधिया गल है कि इन्हां रेशो का सम ही 15 आंदा है। ठीक है, तो जे आप ग्रेप्स पाइनएप्पल ते बनाना 4K 6K 5K मनीए, तो जे आप 15 लीटर मिक्सचर बाहर कटांगे तो 4K चो 4 बार आऊगा, 6K चो 6 बार आऊगा, 5K चो 5 बार आऊगा, तो न्यू क्वांटिटी हो जाएगी 4K माइनस 4, 6K माइनस 6, 5K माइनस 5। 8 लीटर ऑफ ग्रेप जूस, 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड, तो ग्रेप जूस नेक्स्ट हो जाएगा 4K प्लस 4, तो पाइनएप्पल जूस हो जाएगा अपने को 6K माइनस 4। ठीक है, 2 लीटर वो ऐड किया, 8 लीटर वो ऐड किया। If the resultant quantity of grape juice is 10 liters less than resultant quantity of pineapple juice, तो grape juice की resultant quantity 4K plus 4, pineapple juice की 6K minus 4, तो accordingly 6K minus 4 चों जे आप 4K plus 4 घटावांगे तो आंसर आ जाऊगा 10, ये तो K की वैल्यू अपने को 9 आ जाएगी। ठीक है, हम टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछे है, टोटल क्वांटिटी होगी 4K प्लस 6K प्लस 5K यानी कि 15K, यानी कि 15 गुना 9, K की वैल्यू 9 है, 135 लीटर्स। ओके, Vishwas borrowed a total amount of 30,000, part of it on a simple interest of 12% and remaining on simple interest of 10%. If the end of 2 years he paid in all 36,480 रुपए to settle the loan amount, कितनी अमाउंट उन्हें 12% ते चक्की सी। 30,000 चों जे आप 12% की अमाउंट 1000 ए मनीए तो क्वेश्चन ईजी हो जाऊगा। बाकी मीनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 30,000 माइनस 1000 ए, तो 1000 कॉमन, 1000 इंटू 30 माइनस ए। 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 100 नाल पहला डिवाइड कर दो 10 इंटू 12 गुना 2 यानी कि 240 ए। 10% ते की होगा 100 नाल डिवाइड कर दो 10 इंटू 30 माइनस ए इंटू 10 इंटू 2 यानी कि हो जाऊगा अपने को 200 इंटू 30 माइनस ए। टोटल इंटरेस्ट हो जाऊगा 240 ए पहला, 6000 माइनस 200 ए दूजा। ठीक है, तो 6000 प्लस 40 ए। तो हम ध्यान नाल देखो 30,000 का प्रिंसीपल ही सी, 6000 प्लस 40 ए इंटरेस्ट आया, तो 36,480 चों 40 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480।
ठीक है। तो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी हो जूगी 12, ठीक है। तो कितना परसेंट उन्हें 12% पर एनम ते चक्या सी 12,000 रुपये, ओके। लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट 20 पर मीटर इज 10,080, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पेमेंट अलॉन्ग फेंसिंग इनसाइड द फील्ड एट 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो सब तो पहला जी कॉस्ट है उन्होंने आप कॉस्ट पर मीटर नाल डिवाइड करांगे, अपने को स्क्वायर फील्ड की पैरीमीटर आ जूगी। तो कितनी आऊगी वो 504, यानी कि अपने को स्क्वायर की एक साइड कितनी आ जू 504/4 126। हुण आपां की करना है, ये अंदर 3 मीटर की पेमेंट बनानी, उसकी कॉस्ट कढ़नी है। तो पेमेंट का जो एरिया होगा वो आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इनर स्क्वायर की जी डायमेंशन होगी 120 होगी, ठीक है। 3 मीटर इधरों 3 मीटर इधरों 6 मीटर। तो एरिया ऑफ 3 मीटर वाइड पेमेंट हो जाएगा 126 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ला सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी 50 गुना 6 गुना 246, डिफरेंस 6 है, सम 246 है, 73,800 रुपये, ओके। ये अपनी एक वीडियो पूरी कंप्लीट होंगी है। डू सबसक्राइब टू द चैनल द मैथ्स ट्रेनर, तो ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स नाल जरूर शेयर करो। मिलेंगे तुहानूं जल्दी अगली वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।